कौन सा एक्सपेरिमेंट मैंने लिया था? हाँ, फ्लैट स्पाइरल लिया आपने, वो उसका रीडिंग्स लिया? Recording stopped. फेटल स्प्रिंग का ना? हाँ, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। हाँ मैम, हो गया हो कब का। लेट मी सी, जो कोई ऐसा है स्टूडेंट्स जो नहीं आए थे उस टाइम? तो 14 स्टूडेंट्स आए हैं। हाँ बोलिए। हाँ, तो वो है अभी इसमें मीटिंग में। कोई तो मैम को सब किसको तो लगा ये हो गया प्रैक्टिकल कैंसिल, इसके लिए चले बहुत गए? से जन चले गए। हाँ, सबको नहीं, वो ये लग क्या क्या प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ का वो जियो प्रॉब्लम। अभी मैं कॉलेज में आ गई, फिर हाँ मैम। हमारे यहाँ का जियो बंद ही है कुछ कल से। हाँ रुको मैम, हम लोग ग्रुप पे ये बोल देगा ग्रुप में तो आ जाएंगे हाँ, सब। थोड़ी देर प्रैक्टिकल है रुको। स्टार्टेड करके डाल। हाँ मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैं फ्लैट स्पाइरल जो स्प्रिंग का प्रैक्टिकल है वो तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है रे सत्यम बहुत। हेलो बोलो। हेलो हेलो नाउ इट इज क्लियर, बोलो। मैम मैं बोला मेरा फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग का जो प्रैक्टिकल है ना वो अभी सबमिट नहीं किया हूँ क्योंकि अभी क्लियर नहीं मालूम है नोटबुक कैसा बनाना है। मेक बुक, ग्राफ बुक एक आता है ना, वो बना लो। राइट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स इन दैट। मैम मैंने ग्राफ बुक नहीं मैम, नॉर्मल बुक बनाया तो उसमें मतलब नॉर्मल बुक में एक्सेप्ट। ग्राफ पेपर नहीं होता है, यू हाँ हैव टू स्टिक दैट। हाँ मैम, वो वो एक किया पन्ना है मैंने पड़ेगा, बड़ा। वो किया है, ठीक है चलेगा। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग दिस। Flat spiral spring is the spring and we are attaching mass at the end, right? जो नए बच्चे हैं वो फटाफट समझ ले। There is a stand here. We attach one end of the spring to the stand. Other end is given, is attached a load or mass. This mass we are taking as 100 gram up to 500 gram in the steps of 100 grams. Okay. So the hanger initially when we attach it is 100 gram. We give the oscillations, vertical oscillations, and measure time period for 20 oscillations. So T1, T2, and T3. Right? We have to take mean of T1, T2, T3 and write it as T. एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसमें आपको लिखना है. Then take its time period, that is capital T, which is nothing but T upon small t upon 20. 20 oscillation से divide करेंगे तो time for one oscillation, which is called as time period, we get. Once you get T, we have to calculate T square. So for mass of 100 gram, we have to take time for 20 oscillations. Note it as T1, T2 and T3 in seconds. It is mean time in second. This is time period in second. And this is T square, that is second square. Unit will be second square. So this procedure is to be repeated for further masses up to 500 ग्राम. और हमने कितना लिया है? 500 ही लिया है ना.
100 to 500 gram, total 5 readings we have taken, right? And then we have to plot the graph of t square versus m. और उससे स्लोप निकाल के आपको नीचे दूसरा फॉर्मूला दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, सो ये आपका एक्सपेरिमेंट लास्ट टाइम हमने लिया था. इसमें पार्ट ए इज द मेजरमेंट ऑफ एन, capital R and capital small r. What is n? N is the number of turns n of the spring. Small m is mass of the spring that is given to you. N is also given to you. N हमने 60 आपको दिया हुआ है. N equal to 60. Small m is 250 gram. Hence, effective mass of the spring is calculated as m divided by 3. That is 250 divided by 3. And that comes out to be 83.33 gram. Okay. So ये effective mass आपको ग्राफ से भी निकालना है. Intercept on negative x-axis will give you effective mass of the spring. Small d is the diameter of the wire which is used to construct that spiral spring. So that is also to be calculated. So ये first observation is determination of capital D, diameter of the spring. Least count of vernier caliper कितना है? सेंटीमीटर. इतना बोल के आप चुप हो जाते हैं. 0.01 हैज नो मीनिंग. आप जब तक सेंटीमीटर आप बोलेंगे नहीं. 0.01 centimeter, right? We use this to take the readings of diameter. So outer diameter 5.28, 29, 5.28, right? इसका mean लेना है, इसका भी mean लेना है, which is inner diameter. और फिर दोनों का mean लेंगे तो आपको diameter D of the spring you will get, and that will be कितना आया था? कुछ 5.12 आया था, right? 5.12 आया था. और उसका mean रेडियस that means divide by 2 करेंगे तो रेडियस आएगा. कितना आ रहा था ये? 2 point डिवाइड बाय 2. हाँ, 55 या 56 होगा. लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. So this is millimeter. सेंटीमीटर. हाँ, एक एक्स्ट्रा जीरो लगाए सेंटीमीटर. 0.001 centimeter. All the readings they are to be taken into centimeter. अभी हम मिलीमीटर में कोई कुछ भी नहीं लेते हैं. FY से स्टार्ट करेंगे. All the readings are in centimeter. Ma'am, you are not audible. उसका नाम का कनेक्शन गया. नहीं, मैम बिजी हूँ.
हेलो। हाँ हेलो मैम बोल। Now take the mean of this small d. वो कितना आया था? 0.200. हाँ, because all these are in 0.200 के अराउंड ही है सर, तो आ गया ही होगा ये. And take its 0.100. right, that is the radius. Once you calculate the radius, you got capital R, you got small r, right? ये small r मिल गया आपको, capital R मिल गया. Now you have to calculate modulus of rigidity. That is the part 2. Part 2 of this experiment. So क्या क्या करना है अभी आपको? You have to give the vertical oscillations by adding proper mass. So first mass will be 100 gram. 100 ग्राम के लिए 3 रीडिंग लेना है, T1, T2, T3, 20 oscillations के लिए. Then measure time period T and then measure mean time and then time period T square और फिर उसका ग्राफ निकालो. After completing this observation table, T square versus M का ग्राफ निकालो. स्लोप निकालने में कुछ प्रॉब्लम आया? हाँ, हाँ राइट. तो वो क्या करना है बताओ मुझे फिर से, क्या पॉइंट्स है तुम्हारे? हाँ, 0 पॉइंट क्या है पहला? देखो अभी, हाँ, इस टाइप के प्रॉब्लम इसमें क्या करना है, इसको 1 डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दो, राइट? तो अगर आप ये 4.16 लिखेंगे तो इंटू 10⁻⁻1 लिखना पड़ेगा, राइट? हाँ, 4.97 इंटू 10⁻⁻1, 7.74 इंटू 10⁻⁻1. 1 डेसिमल शिफ्ट कर दो, एक डिजिट शिफ्ट करना है राइट से. तो ये आ जाएगा 11.34. 1 पॉइंट है तो 11 का आ जाएगा. अभी ये जो 10⁻⁻1 ये सब में कॉमन, राइट? सो while plotting on the graph on y axis, ये y axis है आपका, t square है, ये सारी वैल्यूज है t square, राइट? तो आप 4.1, 4.9, 7.7, 9.5 ऐसा प्लॉट कर सकते हैं, राइट? तो 11 तक जा रहा है ना आपका रीडिंग, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लेके जा. और स्केल में कैसे लिखना है आपको? 1 इंटू 10⁻⁻1 लिखना पड़ेगा. तो ये -1 यहाँ रिप्रेजेंट है, ओके? यहाँ ये और क्या है, ये टी स्क्वायर है. टी स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर, तो उसका यूनिट भी लिखना है, तभी इसको कुछ मीनिंग है. 1 इंटू 10⁻⁻1 सेकंड स्क्वायर ऐसा लिखो. ये आपका y एक्सिस का स्केल. वैसे ही आपका x एक्सिस का स्केल क्या होगा? 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा है ना. तो आप 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ग्राम, 50 ग्राम है. हाँ, तो फिर आएगा ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 ग्राम, राइट? अगर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है? ये होने के बाद यू प्लॉट द ग्राफ. नाउ टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड राइट इट्स कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? x2 y2 हो गए और ये x1 y1. जो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला है उसको x1 y1 बोलो और दूसरा जो है वो उसको x2 y2. इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं.
तो किसी ने ग्राफ प्लॉट किया है? कैन यू टेल मी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे आपके? एनीबडी, एनीवन, एनी स्टूडेंट दिखा सकते हैं, देख सकते हैं तो बताओ। हाँ हाँ बोलो। हाँ राइट राइट। 4.1 into 10 raised to power minus 4, तो ये आना है। फिर x2, हाँ कोई भी तो। माइनस, तो अभी आपने क्या किया, वो जो रीडिंग्स है 300, 100 वो ही लिया है ना। तो अदर देन रीडिंग लेना है, क्योंकि कभी कभी हमारे रीडिंग लेते वक्त ह्यूमन एरर होती है तो गलत भी आ सकते हैं, है ना। तो ये जो आप जब प्लॉट करते हैं, कोई भी लाइन है जो भी कर्व है, सपोज कोई ग्राफ कर्व में आता है, तो उसको कैसे करना है, जो मैक्सिमम पॉइंट लाइन पे आ रहे हैं एक लाइन पे, उसमें से लाइन निकालेंगे आप, ऐसा प्लॉट करेंगे स्केल से, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ऐसा आप एक लाइन खींचेंगे, राइट। मैक्सिमम पॉइंट कवर करेंगे, एक आध पॉइंट इधर उधर भी जा सकता है, उसको छोड़ देंगे। हाँ, तो फिर वो रीडिंग की गलती है, वो रीडिंग लेते वक्त गलत हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्लोप लेते वक्त पॉइंट ऐसे चूज करेंगे जो अच्छे से इस लाइन पे हो। कोई भी पॉइंट, ऐसा नहीं कि ये वो रीडिंग ही चाहिए, अदर देन भी चलता है। कोई भी 2 पॉइंट आप मार्क करो और उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसा सेम ही आता है स्लोप। ओके, बिकॉज लाइन का स्लोप आप किसी भी उस लाइन पे 2 पॉइंट कौन से भी चूज करो, स्लोप विल बी सेम। स्लोप का मीनिंग वही होता है। ओके, इट इज a locus of all the points, right। तो वो उनका कोऑर्डिनेशन इतना सही रहता है कि वो बराबर आपको स्लोप सेम ही देता है, कोई भी 2 पॉइंट आप चूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी अगर आप हम निकालेंगे तो भी चलता है, बट मेक इट प्रैक्टिस, मेक इट हैबिट दैट चूज एनी अदर पॉइंट्स देन द रीडिंग्स। ठीक है, तो अभी इसका हम स्लोप निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, y2 minus y1 upon x2 minus x1, दिस इज आवर स्लोप। अभी y2 कितना है आपका 300, सॉरी 8 माइनस ये 4.1 ना, और इसमें दोनों में 10 raised to power -1 है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया। अभी x2 minus x1, x2 आपका 300 है, x1 100, 300 minus 100, 8 minus 4.1 कितना आया 3.9, माइनस, और यहाँ कितना आया 200। इसको सॉल्व करो। अभी ये 200 का मैंने 10 raised to power 2 है ये ना, 2 into 10 raised to power 2, ये मैंने ऊपर ले लिया और 3.9 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 1.95। हाँ, 2 5 10, तो 1.95, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10 raised to power 2 plus 2, वो ऊपर -3, राइट। या फिर इसको मैं लिखूंगी 0. ठीक है, ये भी चलेगा 1.95 into 10 raised to -1। ठीक है, ये हो गया आपका स्लोप। ये स्लोप आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, वो फॉर्मूला
हाँ 1 upon slope 60. This is your formula. इसमें आपको 16 into पाई कितना है 3.14 का स्क्वायर. आर कितना आया था कैपिटल आर 2.55 ना. तो n is 60 नंबर ऑफ टर्न्स और r आपका आया था 0.001. हाँ राइट. तो उसका केस और ये 1 upon स्लोप यहाँ सब्स्टिट्यूट. और कितना आया था आपका आंसर. हाँ नहीं 1 पॉइंट में नहीं आएगा. इसका जो आंसर आएगा ना वो बड़ा सा नंबर होगा. तो तुम्हारा कुछ तो गड़बड़ होगा. तो ये देखो ना. हाँ स्लोप को छोड़ के भी तो भी फिर से बोलो 1569 1.5 है क्या वो. नहीं तो फिर से कैलकुलेशन करना. हाँ ये वाला अभी कर सकोगे तो करो. और दूसरे स्टूडेंट से उन्होंने सबमिट किया उनका क्या आंसर आया. किसने सबमिट किया है. हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि पॉइंट नहीं चाहिए. कॉमा होगा ऐसा कुछ होगा. 156 कितना आ रहा है कितना आ रहा है. हाँ तो ये देखो ना 0.001 का मतलब क्या है 10⁻³ राइट. और उसको देखो ऐसा आएगा वो 10⁻³ ना 0.001 है ना. स्मॉल आर इज 0.001 ना 100. अच्छा 100. अच्छा तो 0.1 मतलब होता है 10⁻⁻⁴ ना. चलिए हो गया. कितना है 0.1 है ना एंड रेस्ट टू 4 है. 0.1 मतलब होता है 10⁻⁻⁴ और उसका रेस्ट टू 4 है तो हो गया 10⁻⁴. तो ये जो है ना इसको कैलकुलेटर में लो ही मत आओ. तो ये 10⁻⁻⁴ हो गया और ये 10⁻⁻³ है. तो टोटल कितना हो गया 10⁻⁻⁷. तो इन दोनों का 10⁻⁻⁷ नीचे आ रहा है. ऊपर लेके जाएंगे उसको न्यूमरेटर में. दैट विल बी 10⁻+7 राइट. अभी आपको क्या करना है खाली 2.55 का क्यूब करो. कितना आता है 2.55 का क्यूब. मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर. अरे उसको मल्टीप्लाई करो क्यूब को 3.14 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो.
Anybody has calculated? किसी को आया आंसर इसका? देखो कितना आ रहा है। 2.55 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइड बाय 1.95। इतना करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। हाँ बताओ। हाँ बताओ कितना है? 156780, राइट? डिवाइड पॉइंट डिवाइड बाय 1.95 करो। डिवाइडेड बाय 1.95 तो कितना आ रहा है? 8 पॉइंट समथिंग, मतलब 8000 समथिंग या 80,000 समथिंग। कितना आ रहा है? अरे इतना टाइम लगता है इतना सा कैलकुलेशन करने के लिए? अरे दूसरा भी कोई है कि नहीं क्लास में? Anybody else calculate this? 15678.48 divided by 1.95. चार्ट में लिखा है 80400.2462 कितना है? 7, राइट? अभी यहाँ हमने ये जो 4 डिजिट्स है इसको 8 पॉइंट करना है, ये शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट 4 डिजिट्स। तो क्या आएगा? 8.04 आगे 00 ये तो चलेगा। 8.04 इंटू 10⁻⁴ लिखना पड़ेगा और ये 10⁻⁷ पहले से। टोटल कितना हो गया? राइट? 4 + 7 ये 11 हो गया इंटू 10⁻11 और इसका ये क्या है? यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल वैल्यू अराउंड 7 या 8 आना चाहिए और इंटू 10⁻, हाँ चलेगा, इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पर है डिवाइड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसा आंसर आया है आपका तो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ये इंटू 10⁻11 आना चाहिए और इधर 7, 8 या समथिंग 6.9 ऐसा भी चलेगा। ओके, अगर आपके ये राइट है, रीडिंग्स राइट है, हाँ तो 7.41 भी राइट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा आया तो सबमिट कर देना। हाँ, जिन्होंने नहीं किया है उनके ऊपर। ठीक है, एनी अदर प्रॉब्लम? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था ना?
हाँ, क्लासरूम में सबमिट करना है। कौन से क्लासरूम में, यानी कि जो प्रैक्टिकल के लिए बनाया है उसमें सबमिट करना है, और जहाँ पे आपको दिया गया था ना, जहाँ से आपने डाउनलोड किया है, ओके मैम। उसी पे जाके सबमिट करना है। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं। हाँ बोलो। मैम हेलो हाँ यस। मैम, मैं पूछ रहा था मेरा जो असाइनमेंट 1 एंड 2 है फिजिक्स का, हाँ वो मेरा प्रैक्टिकल में सबमिट कर दिया था, बाद में मुझे पता चला कि उसका अलग से है। देखो, वहाँ पे टाइटल रहता है ना, टाइटल है तो उसी टाइटल में सबमिट करना है। नाम रहता है ना, वहाँ एक्सपेरिमेंट का नाम है तो उसमें एक्सपेरिमेंट ही जाना चाहिए, फ्लैट स्पाइरल है तो फ्लैट स्पाइरल ही जाना चाहिए। मैम ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना, इसका इसमें हो नहीं, गया तो? हाँ नहीं, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं, फिर से सबमिट करो तो ये लेकिन सबमिट किया मैम, डन लेट बता रहा है। रिमूव कर सकते नहीं है क्या वहां से आप लोग? हाँ हाँ ठीक है, वो निकाल के दूसरा डाल दो। मैम हाँ, और शुभम बोलो। मेरा रोल नंबर का इशू हुआ था मैम। रोल नंबर का इशू हुआ था, मुझे पहले 104 बताया गया था, बट वो चेंज होके 121 हुआ है, तो मैंने असाइनमेंट में लिखे तो 104 लिखा है। बट नेम तो सही लिखा है ना? हाँ नेम सही लिखा है मैम। हाँ ठीक है, हम नेम से पहचान लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ क्या? अभी तक तो आया नहीं, बट लग रहा है स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपसे डेटा लिया ना अभी, हु इज वैक्सीनेटेड एंड हु इज नॉट। हाँ तो वो अभी उसके ऊपर लेंगे वो, जब भी प्रिंसिपल का मैसेज आएगा उसके बाद आपको कॉलेज आना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, अभी पता नहीं वो कॉलेज का कैसा वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, हमें भी पता नहीं अभी, टीचर्स को भी। ओके, बाय देन। सर ने पढ़ाया है आपको, किरण सर ने? किरण हेलो सर ने टीचर। पढ़ाया। हेलो हाँ टीचर। बोलो बोलो। टीचर मैं बोल रहा था कि ये प्रैक्टिकल है जो हम लोग पहले वाले बुक में लिखे उसमें लिखे ना, पहले वाले क्या? मतलब जो प्रैक्टिकल बुक बनाए हम लोग ने, फ्लैट स्प्रिंग जिसमें लिखे उसमें लिखे ना, कंटिन्यू करें। अच्छा, ये सेम एक्सपेरिमेंट है, तो आज ये मुझे डबल आया ना, तो इसलिए मैंने रिवीजन लिया। सेम ही यस एक्सपेरिमेंट यस है। टीचर। हाँ और कोई अब्सेंट थे ना, तो उनके लिए भी था ये, तो जो अब्सेंट है तो वो कर सकते थे इसमें। और एक बात है, अभी आपका टेस्ट है ना नेक्स्ट वीक में, यस मिस। मंडे को मेरा लेक्चर है, तो अच्छे से अटेंड करो। हाँ, तो थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मंडे को लेक्चर 26 से रहेगा। रहेगा ना मिस एग्जाम? हाँ, और 25 को लेक्चर है मेरा, मंडे को 10 बजे। चलेगा मिस। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस मोर। चलो फिर बाय, मीटिंग एंड करते हैं।